today is the test of your knowledge. So please participate, whoever, even the new people also can participate. Either e- the maximum it will go wrong. Nothing goes more than that. And you are not here to lose any marks, not the exam, nothing else. Here, if you do the wrong, it's a good that you will able to understand. So now the question is what I have taken the 20 questions. We are going to do all the 20 questions in front of you, and we will try to understand how, if have we read the theory, whatever I have taught in last three classes. If not, okay. So now question number one. When preparing the performance report of a cost center using the flexible budget technique, the planned cost column should be based on what? Bhai साहब, कमाल साहब, यादव जी. Because the key points, the keywords is like the flexible budgeting. When you say the flexible budgeting is nothing. It's just an adjustment of the static budget to the actual level. So what should I do? B or C? Okay. Let's go to the question number two. Now, please do calculate by yourself and then answer. Company, a manufacturing firm plan to manufacture and sell the 10,000 unit for the product during the year at the variance at the variable cost per unit is 4 and the fixed cost is 2, and the firm fell short of its goal and only manufactured 80,000 of the units. Total incurred is 105 and total incurred 515,000. The manufacturing firm's manufacturing cost variance. Can somebody do the calculation? So first of all, it is 100. That is the plant capacity, and you are going to produce what? What is the variable cost? Variable cost is 4. So your that, and then you have a fixed cost is 2. So it is like that. But the question is, when you take this variable, you need to do what? You need to multiply the applied rate to the actual unit to get the budgeted to get the standard cost. So what is the cost? 880,000 unit you have produced. So instead of writing 100,000, you need to write it here 80,000. So 520 is the cost. Okay, that is the cost. And what is you have incurred? You have incurred 515,000. 515,000. So there is a saving of 5,000 dirham. That is called 5,000 favorable. So which what should I answer? A. Do anyone has a problem? Because see the question was very simpler. Okay. No, even for the next level, for what is the spending variance for variable cost or expenditure variance for variable cost? You are doing a standard rate minus actual rate multiplied by actual quantity. Okay, since you produce the actual quantity, you don't know, so you have to, what you did here simple things. You did SR into actual quantity. First part you did here actual quantity, then you add the budgeted fixed cost,
and minus actual cost. This is the formula you actually used here. Okay, and this was the variable cost point of view. You have a fixed cost also. So this was from the variable cost point of view. You have the fixed cost. What is the formula? Budgeted minus actual. So you used these two formula as a combined. Okay. Now come to the question number 3. Can somebody answer this question? In analyzing the company operation, the controller of the Johnson Corporation found that 250,000 variable flexible budget revenue variance. Okay, the variance was calculated by comparing the actual result with the flexible result. The variance can be wholly explained by what? Now you need hmm? Sales volume variance. Why? No, actually there was a initial discussion. We had one static, then we make the flexible, then we make the actual. The difference between actual and flexible was sorry, static and flexible was static variance. Static variance, and between the flexible and actual was flexible variance. This was, and when I say this was actually not the static, that was actually the volume variance. Sorry. So now you will figure out which one is the correct. In analyzing the controller of the Johnson found 200,000 favorable fixed budget revenue variance. So what is happened here? Favorable. It means here he must have some revenue, say 5. He must have here 8. 8 favorable है. Revenue favorable है. So I'm just taking an example. So he must have these type of situations. Now the variance is calculated by comparing the actual results with the with the flexible budget. The variance can be wholly explained by. नहीं होता तो है ना. See, this is not the case of the volume variance. Okay, because the volume variance is the difference between the static and flexible. So this may be the only one reason that is called Celsius. Yes, yes. Now, because this question is little big, so I'm putting like this. What about the other peoples? No one is participating now. Okay, no problem. Who wants to keep the burden on mine? Now,
ओके जी। ये तो अजी 16,000 में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? सवाल मेरा भी वही है, क्या दिक्कत है? सवाल को फिर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं सर जी। देखो, आपके पास ये बजट स्टैटिक कितने की थी जी? 80 की थी। तो इस इंफॉर्मेशन को आगे ले जाके काम करें, कोई हड़बड़ी नहीं है ना? जल्दी जल्दी पूरे अरे कर लेते रे बाबा। चलो, ये है आपके पास सेल्स की क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी थी? 1 लाख। 1 लाख एक्चुअल थी ना? तो ये एक्चुअल थी। ये क्या थी हम लोग की? स्टैटिक थी। खत्म। खत्म खत्म। हो गया। अब आइए, आपसे बीच में क्या बनाना पड़ेगा आपको? लक्ष्य। अच्छा, ये बनाने में कोई मेरी मदद करो भाई। भाई यहाँ पे क्या लिखूंगा? यूनिट की जगह क्या लिखूंगा? यूनिट की जगह 1 लाख आ जाएगा। हाँ जी। सेल्स डॉलर की जगह सेल्स कितना आएगा हमको नहीं पता, आपसे पूछ रहा हूँ कितना लूँ। सही है। ये तो कुछ और हो गया। हाँ। हाँ जी, ये बताइए। हाँ जी, यहाँ पे कितना लिखूं? ठीक है तो। अच्छा, वॉल्यूम वेरिएंस का डिफिनेशन याद है कि वो भूल गए? वॉल्यूम वेरिएंस में इसका और इसका इम्पैक्ट होना चाहिए। कभी कभी। क्या मानूं? अजी साहब ये बताएं। अजी साहब, कौन साहब?
साहब बोलो, कौन सा मार दूं? ये मार दूं? पता नहीं ये वाला मेरे को आंसर क्यों गलत लग रहा है। चलो ये बता। नगराज साहब, हाँ जी, कौन सा है? ये वाला? हाँ जी साहब। कोई और आदमी इसको वैलिडेट कर सकते हैं क्या?
करा देना भाई मेरे को, मैं तो चाह रहा था कि आप अपना एफर्ट लगा ले जितना लगा सकते, करा देना। बोले चैंपियन कंपनी, चलो ठीक है। Genkin company uses the standard processing and manufacture of the single product. 26 units of the raw material was invented by purchase 105,000. The two units were required to produce the one unit of the final goods. 35,000 यूनिट है जी साहब। 35,000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज किया, कितने का? 1,05,000 का। ठीक है, तो पर यूनिट का प्राइस तो आपने निकाल दिया यहाँ से, 1,05,000 और 35,000, तो आपका प्राइस तो निकल गया जी साहब। तीन रुपये क्या निकल गया जी? परचेज किया तो एक्चुअल प्राइस निकल गया। बोला 2 यूनिट रिक्वायर्ड है, 1 यूनिट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, अगर कंपनी प्रोड्यूस 12,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। कंपनी ने क्या बोला जी? 12,000 यूनिट प्रोड्यूस किया। बोला स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर द मटेरियल ऑफ द आउटपुट जो क्या है उसका, बोला स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर मटेरियल अलाउड फॉर आउटपुट इज 60,000। तो सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि 12,000 यूनिट प्रोड्यूस किया, इसका मतलब ये है कि 12,000 यूनिट प्रोड्यूस किया। हर यूनिट के लिए दो चाहिए, तो टेक्निकली उसने 24,000 यूनिट लगाई। ठीक है, उसका लिए उसको बताया जा रहा है। ठीक है जी, तो अब ये बातें निकल के यहाँ से आ गई कि कंपनी ने 12,000 यूनिट जो है प्रोड्यूस किए। 12,000 के लिए टेक्निकली उसको चाहिए 24,000 यूनिट चाहिए था। अब बोल रहा है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट जो दिया हुआ है वो है 60,000 का। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर मटेरियल अलाउड फॉर दिस आउटपुट इज 60,000। यानी अब जो अलाउड जो आउट ये है, इसका जो कॉस्ट अलाउ किया हुआ है वो कितना दिया हुआ है जी? 60,000 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि इसके पर यूनिट की अगर मैं एक्चुअल प्राइस चेक करूं तो कितनी आनी चाहिए? 2 रुपया 50 पैसे। अब सवाल बनता है जी कि इसकी एक्चुअल प्राइस आ गई थी 2 रुपया 50 पैसे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रेट आ गया। अब हमसे क्या बोल रहा है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल दे फॉर द यूनिट यूज्ड। अब सवाल है कि यूनिट यूज्ड कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर लिखा हुआ था जी साहब कि आपके पास एक अनफेवरेबल क्वांटिटी वेरिएंस है। तो अनफेवरेबल क्वांटिटी वेरिएंस का मतलब ये है कि 2,500 जो है उसमें ज्यादा लग गया। इसका मतलब आपका जो एक्चुअल लगा था वो क्या लगा था? 62,500 लग गया। अब इसके लिए जो क्वांटिटी आपने कंज्यूम करी है वो क्वांटिटी कंज्यूम करी 25,000। ठीक है, अब आपसे उसने खेल दिया। उसने बोला साहब आप जो कंज्यूम्ड क्वांटिटी यानी जो यूनिट क्वांटिटी है उसके साथ आपको वेरिएंस निकालना है। तो अब आपके पास दोनों चीज अवेलेबल है, स्टैंडर्ड रेट भी अवेलेबल है, एक्चुअल प्राइस भी अवेलेबल है, और दोनों को दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? 25,000 से। तो यानी कि 12,500 का एडवांस आंसर आना चाहिए। अगर किसी का 12,500 आया था तो वो बताएं, सही है? हाँ जी साहब, ये देखिए, ये तो मैंने कॉस्ट का डिफरेंस निकाल लिया जी, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। और ये जो निकला था ये एक्चुअल में एक्चुअल क्वांटिटी निकला। ये सवाल कहाँ से ट्रिकी? जी क्या बोल रहा? हाँ, एक्चुअल निकालने की निंजा टेक्निक ये थी कि ये स्टैंडर्ड कॉस्ट था, और ये वाला जो पैसा था ये हम लोग का वो था, एडवर्स वेरिएंस था। ये एडवर्स वेरिएंस था।
जी साहब। हाँ, काफी सारी बातें थी। हाँ जी, ये बताने, ये तो बच्चे वाला सवाल है। हाँ जी, बताए ना। दोनों ऑप्शन नहीं है सेलेक्ट करने का, कोई एक ही करूंगा। चलो जी। अरे और कोई आदमी कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं क्या? हाँ जी, बताए, जल्दी बताए। जिसको पकड़ना पकड़ लो, हमने कौन से आंसर आपका सही होगा या गलत होगा, मेरा क्या। चलो भाई, प्रोडक्शन मैनेजर से कर लेते हैं। चलो सही है। अरे गलत होगा, उससे आते क्या होगा, ये बताइए। क्या 42 है 46 है? किसी का रटा हुआ है तो बताए भाई। 40 या 42 है इसका आंसर, हमको नहीं भी रटा हुआ है, याद नहीं है मुझे। तो प्लीज कैलकुलेट कर ले। नहीं नहीं, सारे पे नहीं, लेकिन ये सवाल तो बता दो, ये बहुत बेसिक सवाल था। कौन सा? मतलब कोई आपने इंटरेस्टेड नहीं है सवाल को सॉल्व करने में? हाँ, मतलब यही कहने का, यही मेरा अंदर से अंदर आत्मा यही पूछ रही थी उनसे।
और हो गया। दे दो, दे दो। गर्म पानी में करके। हाँ जी बोल दें। अरे भाई किसी ने नहीं करनी है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? रफीक भाई आप ही कर लो यार। हम्म, तो दे के गया था 500। हाँ, ये बात सही है। मैं बताऊंगा। बोला कंपनी बिगन टू प्रोड्यूस 40,000 कंपनी, सॉरी बिगन नहीं है, बजट है। द कंपनी बजट टू प्रोड्यूस 4,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एंड एक्चुअल प्रोडक्शन जो हुआ वो 4200 हुआ, यानी हमने प्लान बनाया 4,000 का, पर हमने 4,200 बना दिया। The standard amount of direct labor allowed for the production is 1 hour। इसका मतलब मेरा 1 घंटा लगने वाला है एंड उसका रेट है 43। Then direct labor flexible budget variance, direct labor flexible budget variance. The company determined that direct labor efficiency variance was unfavorable 8600. Which of the following close to the actual hourly rate for the direct labor if the total direct flexible budget was unfavorable? If the total direct labor flexible budget variance was unfavorable कितना? 4400। देखिए सवाल के अंदर मैं एक लॉजिक यूज किया हुआ, और ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए एक स्टैटिक नंबर तो आपको पता है, स्टैटिक नंबर आपको पता है। आपने 4,000 यूनिट बनाने की बात कही, एक्चुअल आपने 4,000 यूनिट भी आपने एक्चुअल में कितना यूनिट बना लिया जी? 4,200 यूनिट आपने बना लिया, ठीक है। तो यानी कि फ्लेक्सिबल में भी आपको सेम यूज होना चाहिए। 4,200 यूनिट स्टैंडर्ड के हिसाब से, 4,200 का फ्लेक्सिबल हो गया, इसका भी 1 रुपए का रेट है, तो ये हो जाएगा आपको कितने का? 4,200 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब इसका रेट आपको नहीं पता, ये रेट एकदम नहीं पता है। ये क्लियर है? ये अमाउंट क्लियर है? हाँ, सॉरी इसमें 1 यूनिट लगता है और यहाँ पे रेट लगता है, सॉरी रेट यहाँ लिख लेता हूँ, रेट लगता है आपको 43 रुपीज का, 43 पर यूनिट। इसका मतलब 4,200 मल्टीप्लाई बाय 43, ये हो गया हमारा क्या? स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एक्चुअल यूनिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एक्चुअल यूनिट। अब बोला है व्हेन एनालाइजिंग द डायरेक्ट labor flexible budget variance the company determined that determine क्या क्या है, डायरेक्ट लेबर इफिशियंसी वेरिएंस वाज 8600 अनफेवरेबल। तो सवाल ये है कि इफिशियंसी वेरिएंस, कोई मुझे अगर फार्मूला से गाइड कर सकता है तो कर ले। तो डिफरेंस इन आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, है ना। अब मुझे इसमें एक्चुअल आवर्स नहीं पता, क्या नहीं पता? एक्चुअल आवर्स नहीं पता मुझे, लेकिन स्टैंडर्ड आवर्स मुझे पता है।
स्टैंडर्ड आवर कितना है? वो अच्छा, कहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड एक्चुअल आवर? थोड़ा हमको पढ़ के बताइए तो। नहीं लिखा है भाई। ठीक है, ठीक है। अब चूंकि ये मेरे को स्टैंडर्ड आवर लिखा हुआ है मेरा भाई, क्या परेशान हो रही है ये। उसके बाद क्या है आपका? अनफेवरेबल वेरिएंस है। अनफेवरेबल वेरिएंस कितना है सवाल में जी? इफिशियंसी 8600। इसका मतलब एक्चुअली उसका जो खर्च हुआ होगा, ये वैल्यू जो निकल के आया है, इसको अगर हम निकालेंगे तो लिखेंगे एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो यहाँ से हम एक्चुअल आवर्स निकाल लेंगे। तो एक्चुअल आवर्स निकालने की निंजा टेक्निक ये है कि इसको हम 43 से भाग लगा देंगे। तो 4400 घंटा जो है उसका क्या है? एक्चुअल आवर है। तो ये मेरे को मिल गया, 4400 घंटा मिल गया। अब बोल रहा है कि साहब उसी का जब फर्दर उसने एनालिसिस किया तो पता चला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द एक्चुअल आवर रेट। अभी रेट पे हम पहुंचेंगे थोड़ा 1 मिनट के बाद। बोल रहा है इफ द लेबर फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस जो है अनफेवरेबल है 4400। अभी जो मेरा निकल के आया वो क्या निकल के आया? 4400। ये मेरा क्या निकल के आया? एक्चुअल आवर का प्राइस निकल के आया, एक्चुअल आवर। ठीक है। अब चूंकि डिफरेंस इन प्राइस यानी एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय दिस करते तो 89 ये मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट निकल जाता, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट प्लस अनफेवरेबल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी इसका अनफेवरेबल है, फेवरेबल नहीं है। 44 रुपए का अनफेवरेबल है। इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल कॉस्ट आया होगा वो आएगा कितने का? 193। और इसको अगर एक्चुअल क्वांटिटी से हम डिवाइड कर देंगे तो मेरा 44 रुपये आंसर आना चाहिए। इसमें नहीं है क्या? अन... क्या चीज? नहीं, एक्चुअल आवर्स डबल हमने ऐड नहीं किया ना, हमने वो अनफेवरेबल वाला अमाउंट ऐड किया। 44 इसमें नहीं है, किससे माइनस करो? हाँ, ये वाला दे दिया, ये निकल के आया कि हमारा एक्चुअल आवर्स कितने लगे। ये सब ठीक है। 189 200 हो गया ना, तो 189 200 को 43 से भाग लगा दिया तो हमारा कितना आ गया? एक्चुअल आवर 4400 निकल गया। किसे? 4200 से? नहीं, ये तो नहीं आएगा। अब सवाल बनता है 44, क्या है कि ये वर्ड अगर फेवरेबल आता ना तो फिर कोई मुश्किल नहीं था। नहीं हो सकता।
42। अबे यार ये कैसे बोल सकते हो? ये माइन ये जो हमारा अभी कमाल साहब भी बोल रहे थे ना कि प्लस नहीं माइनस करो, ये वाला अमाउंट जो होगा ना ये उन्होंने माइनस पे निकाला है, पर सवाल ये है कि वो माइनस क्यों करना है। अच्छा हाँ, सही सही सही। नहीं, फेवरेबल होता तो ना हमारा प्राइस कम होता। यहाँ पे देखना भाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 4200 का वेरिएंस कहाँ से ले रहा है? बयालीस से एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग द क्लोजेस्ट टू द एक्चुअल आवर टू द डायरेक्ट, which one of the following is the direct if the total direct labor flexible। अच्छा 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 अच्छा। देखिए भाई, यहाँ पे जो वर्ड है ये लिखा हुआ टोटल जो है 4400 है, यानी कि व्हेन आई से ये माइनस करने के लिए हम आपको पहले एक चीज सिखा बता रहे हैं। टोटल वेरिएंस इज इक्वल टू इफिशियंसी प्लस प्राइस। ठीक है, अब ये वैल्यू दिया हुआ है उसने -4400, इधर में दिया हुआ है -8600, प्लस प्राइस करेंगे। तो यहाँ पे इफिशियंसी उसने बता दिया था -9600 प्लस प्राइस वेरिएंस। ठीक है, अभी चूंकि प्राइस वेरिएंस आपका क्या निकल के आएगा, प्राइस वेरिएंस निकल के आएगा +9600 -4400। तो सॉरी, +96 नहीं है, +86 है। तो ये निकल के आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4200। अब यहाँ पर आपने क्या लिखना था, यहाँ पे वर्ड लिखना था फेवरेबल प्राइस वेरिएंस 4200। तो ये हमारा आंसर आएगा। तो इतनी सारी इसमें लॉजिक थी तो, ठीक, इतनी सारी लॉजिक थी, दिस क्वेश्चन वाज नॉट इजी एट ऑल। हाँ जी। आप बताएं किसी के, अभी अभी रफीक भाई आपके माइंड में कोई सवाल आता है क्या इसके लिए? हाँ, रफीक भाई। चलिए ये वाला बताइए, 12 नंबर। कॉफी में मेरे पास व्हाइट वाटर है। हाँ जी भाई।
क्या पॉइंट? हम्म, बात में दम है सर जी। लाइन नंबर 3 पे। हाजी 13 नंबर। चले हाजी 14 नंबर। बोले भैया क्या हुआ? कोई आदमी नहीं पार्टिसिपेट कर रहा भैया। 1 2 3 4 5 आदमी है, कोई आदमी नहीं कर रहा। ऐसा कैसे? एग्जाम सबने देनी है, पैसे सबने लगाने हैं, ये दिक्कत क्या है? ये वाला इसको। हाजी भाई वैसे मिक्स मैंने पढ़ाया नहीं तो इसको स्किप कर लीजिए। यील्ड मैंने पढ़ाया नहीं तो इसको स्किप कर लो। हाजी ये वाला चलो मिक्स और यील्ड नहीं पता। हाँ ये तो नहीं पता, ये तो किसी ने नहीं करनी। देख लो भाई 20 सवाल में 4 सवाल मिक्स और यील्ड का था। क्या 6 सवाल था? इसका मतलब है कि नेक्स्ट सेशन में मिक्स यील्ड करना है और फिक्स ओवरहेड अच्छे से करना है। पूरी लॉजिक होगी, बस खाली करना अपने हिसाब। 70% के साथ 2% और चाहिए पास होने के लिए। मतलब क्रेडिट पूरा लेना है। कोई नहीं, बट आप लोग देखिए जिन्होंने किया, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो तो चलो ठीक है, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनके लिए क्या रोना है? बताएं जी। क्या चीज के लिए साहब? डिटेल मैंने शेयर कर दी थी। ऐसा कैसे? चलो 1 मिनट लगता है, अभी मैं शेयर कर दिया। हाजी साहब सब शेयर हो गया। लास्ट डे वाला क्वेश्चन शेयर करना है, उसको मैं अच्छे से हाथ से बना के भेज दे रहा हूँ। ठीक है। बट ऑन द टॉप ये सारे जो सवाल थे इसमें कम से कम 3 वैसे सवाल थे, 3 4 वो सवाल थे जो लिटरली आपको नहीं बनेगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया। बाकी सवाल तो चलो